Everyone, today in this video we're gonna be looking at work done by constant force. अब ये होता क्या है? तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ दैट द वर्क दैट वी यूजुअली डू इन आवर होम लाइफ इज़ लाइक making your assignments, doing your homework, home tasks. That is not work. Basically in physics that is not work. So today in this video we're gonna be looking at work done by a constant force. We have variable force as well, work done by a variable force, but here in this video we're not gonna be we're gonna be looking at work done by a constant force. So what is constant force? Means जिसका magnitude और direction force will not change, right? वो constant रहेंगे. ओके तो आज हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक वर्क डन होता क्या है, राइट? अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सरफेस, यहाँ पर एक गाड़ी है, आई एम मेकिंग है. मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, गाड़ी को मैं एक रोप से खींच रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ और गाड़ी जा रही है स्ट्रेट, राइट? तो इसके बीच में गाड़ी और ये जो गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ मैं, तो गाड़ी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी, तो उसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे. और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल भी बनेगा, राइट? एंड वी नो जब एंगल बनता है तो वी हैव कॉम्पोनेंट्स, राइट? तो जो डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट है दैट इज़ एफ एक्स एंड दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, राइट? अगर हम बात करें फोर्स के कॉम्पोनेंट की, तो फोर्स का कॉम्पोनेंट इस तरफ होगा एंड दैट विल बी साइन थीटा, राइट? तो अगर हम बेसिकली मैथमेटिकली इफ़ वी टॉक अबाउट मैथमेटिकली हम फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी. सो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कंसिडर एज वर्क. अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है जब हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें एंड देन वी गेट स्केलर. फोर्स वी नो दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, displacement is known as vector quantity, but work is a scalar quantity. तो जब ऐसी सिचुएशन आए that is known as dot product, right? तो इस डॉट को रिमूव करने के लिए we gonna be putting the physical quantities aside and cos theta. Okay, so what will be the definition of work by a constant force? Let's just discuss that. Work done. What is work done? Is a dot product. Is a dot product. Is a dot product of force and displacement. And if we talk about this theta that I am using is the angle between force and displacement. So as I told you that work is what? Work is a scalar quantity. And the SI unit of work is, let's find out. We have work is equal to F into D, force is equal to Newton, and displacement is equal to meter. So that is Newton meter. Alright. Now talking about in FPS system, so the unit of work in FPS system is foot into lbs. Foot is the unit of displacement and lbs is the unit of force, right? Now talking about the unit of work in CGS, so we know that C for centimeter, gram, second. So the unit of work in CGS system is erg, right?
are more information, we will discuss that later. So now I'm gonna tell that work depend on few phenomena, right? First of all, when cos theta is 1, so the work will be maximum. Okay, if the cos angle is 0, so work is minimum. If the cos angle is 180, if the cos angle is 90, so work is minimum. If the cos angle is 80, so the work is negative. Let's just discuss this, right? So if a force here, now I'm gonna talk about this maximum. So if force and displacement are parallel to each other, so the force will be maximum. Like how? For example, this is an object, and here in this direction I'm gonna apply force, and the same direction I'm gonna apply in this direction force is फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट वो इसी डायरेक्शन के अंदर कवर कर रहा है. सो नाउ हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट cos थीटा 1. सो cos थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या बोलते हैं 1 होती है. तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है. तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो द आंसर वुड बी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, नाउ वी गोना टॉक अबाउट 90. अगर cos 90 होगा तो वर्क होगा मिनिमम. लाइक सी, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are not opposite, so what I was writing is, if the force and displacement are perpendicular so to each other, force and displacement अगर एक दूसरे से perpendicular होंगे, like for example this is object, मैं इस तरफ फोर्स लगा रही हूँ, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हो रहा है. ठीक है, तो तब हमारे पास जो वर्क होगा ना वो हमारे पास मिनिमम होगा. लेट्स सी, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. थीटा की जगह पे हम 90 थीटा लगाएंगे, और 90 थीटा जो बराबर होता है ना, दैट इज़ इक्वल टू 0, राइट. तो अगर हम बात करें एफ कॉस थीटा कॉस 0, क्योंकि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज़ 0, तभी हमारे पास वर्क डन हमारे पास 0 आएगा, एंड दैट विज बी मिनिमम, कम से कम, राइट. अगर मैं इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल लूँ, तो जैसे यू आर कैरिंग अ शॉपर. आप एक शॉपर कैरी कर रहे हैं, तो शॉपर कैरी कर रहे हैं तो वो क्या लग रही है, फोर्स अपवर्ड लग रही है, उठा रहे हैं शॉपर. और जब आप शॉपर को लेके चल रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, राइट. डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ cos 90. अब नाउ सी cos 90 कैसे, यहाँ पे वर्क डन 0 क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. मैंने बोला ना कि cos जब 90 होगा तो वर्क डन हमारे पास 0 होगा, बिकॉज सारी फोर्स तो आपकी लग रही है. ओके, आपकी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा. अगर ये थैली खुद चल के जाएगी दैन इट विल बी वर्क, लेकिन यहाँ पे तो आप फोर्स लगा रहे हो, यू आर कैरिंग इट अपवर्ड, आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हो, आप ऊपर लेके जा रहे हो, अपने हाथ से आप ऊपर पकड़ के चल रहे हो, हैंग करके आप यूँ करके चल रहे हो, एंड यू आर मूविंग, तो डिस्प्लेसमेंट भी कर, लेकिन इसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. रिमेंबर दैट. ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर. नाउ वी गोना सी दैट वर्क डन अगर हमारे पास cos थीटा हमारे पास 180 होता है. अच्छा, यू नीड टू रिमेंबर दैट cos 90 के अबव जो वैल्यू होगी ना, तो वो हमेशा नेगेटिव ही होती है, राइट. तो इसकी सिचुएशन क्या होगी cos 180. अगर बात करें cos 180 की, तो इफ़ फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट और एंटी पैरेलल। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होंगे तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। रिमेंबर दैट। लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। अच्छा, मैथमेटिकली इफ वी टॉक अबाउट, सो वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ कॉस 180? दैट इज -1। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। मैथमेटिकली तो हमने प्रूव कर लिया दैट द कॉस 180 अगर होगा हमारे पास तो हमारे पास वर्क डन माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, राइट। वो कैसे होगा? डेली लाइफ की एग्जांपल दूँ अगर मैं आपको, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो लिफ्ट में, आप लिफ्ट में जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, 6th फ्लोर पे जाना है, तो फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वजह से जब आपको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, राइट, ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी। यू आर गोइंग अप बाय लिफ्ट एंड बट द ग्रेविटी विल बी पुलिंग यू डाउन। ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी, आप फिर भी ऊपर तो जा रहे हो, लेकिन दूसरी जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा होगा वो ग्रेविटी की सूरत में हो रहा होगा, तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। यू आर गोइंग अप, फोर्स लग रही है, नीचे आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, नीचे क्यों आ रहे हो? क्यों आपको नीचे की फीलिंग क्यों नहीं फील हो रही? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर मास कम है, लेकिन हमारे पास डाउनवर्ड भी तो लग रहा है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है। तो दिस फिनोमेना ऑफ डेली लाइफ, उसके अंदर वर्क डन वी विल बी गेटिंग इज माइनस, राइट, आई होप। अच्छा, इफ आई कुड गिव यू अनदर एग्जाम्पल, येस, द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी व्हेन द कार इज मूविंग, ओके, कार मूव कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स वी नो, हम जब चलते हैं तो वी गेट फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा, करेक्ट। सो दिस वाज द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और फोर्स सेम रहेगा। वी shall have a look at work done by variable force in the next video. Till that, goodbye.